Hello everyone. Today we will start chapter 4 Electricity, Magnetic and Heating Effects. विद्युत धारा के चुंबकीय और ऊष्मीय प्रभाव. It was the day of science exhibition and the school was buzzing with energy. Mohini and Akash along with their friends went from one exhibit to another, eagerly exploring different models, asking questions and taking notes. ये एग्जीबिशन का दिन था स्कूल में और मोहिनी और आकाश अलग अलग जो काउंटर्स बने होते हैं एग्जीबिशन पे वहां पे जा रहे थे और डिफरेंट मॉडल्स को एक्सप्लेन कर रहे थे और क्वेश्चन पूछ रहे थे और नोट्स भी ले रहे थे उनके. One simple model really fascinated them. It was a working model of a lifting electromagnet which was displayed by their senior Suman. In it, instead of a hook like a typical crane, there was an iron nail wrapped with a wire which was connected to a battery. When Suman closed the circuit, the nail picked up आयरन पेपर क्लिप्स लाइक अ मैग्नेट. तो उनको सबसे ज्यादा अचंभित करने वाला एक मॉडल दिखा जो कि था एक लिफ्ट का मॉडल था, लेकिन उसमें किसी सामान को उठाने के लिए हुक नहीं लगा हुआ था जैसे कि एक सिंपल क्रेन के अंदर लगा होता है. उस तरीके का हुक ना होके वहां पे एक लोहे की कील लगी हुई थी जिसके ऊपर वायर रैप्ड था. और जब उसको बैटरी से कनेक्ट करके सर्किट को क्लोज करते थे यानी स्विच ऑन करते थे तो वो जो कील है वो सामने जो भी आयरन पेपर पड़ा होता था उसको चिपका लेती थी अपने अंदर, एक मैग्नेट बन जाती थी वो कील और इस तरीके से उस सामान को वहां से उठा लेती थी. When she opened the circuit, the clips fell off. Mohini Akash were surprised. They remembered learning earlier in chapter Exploring Magnet Curiosity Grade 6 that magnetic materials were attracted by magnet and that iron was a magnetic material. But in Suman's model, there was no magnet, only an electric circuit. They were so excited that they wanted to try it out themselves. जब वो सर्किट ओपन हो जाता था यानी वो स्विच ऑफ कर देती थी सुमन, तो वो जो सामान था पेपर आयरन पेपर वो गिर जाता था. तो दोनों बच्चे जो हैं वो उन्होंने उस चीज को रिमाइंड किया जो उन्होंने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो मैग्नेट होता है वो आयरन को अपने पास अट्रैक्ट करता है या अपने अंदर चिपकाता है. तो सुमन के मॉडल में वहां पे तो कोई मैग्नेट था नहीं, तो वो बहुत अचंभित हो रहे थे ये सब चीजें देखकर. Does an electric current have a magnetic effect? Select a magnetic compass, an electric cell, and a cell holder, 2 drawing pins, a safety pin, 2 nails, 2 pieces of connecting wires, and 2 small pieces of cardboard. ये सब कुछ सामान हमें इकट्ठा करना है. Using 2 drawing pins, a safety pin, and a cardboard piece make a switch. As you made it earlier in the chapter Electricity, Circuits and Their Components in Curiosity Grade 7. जैसे आपने ग्रेड 7 में सेफ्टी पिन का यूज करके एक स्विच बनाया था उसी तरीके का आपको एक स्विच बना लेना है. Place the cell in the cell holder. सेल होल्डर में सेल को लगाना है. Fix 2 nails to a piece of cardboard as shown in figure 4.1a. Fix the middle portion of the longer wire stretched between the nails such that it is slightly above the surface of the cardboard. Attach one end of that wire to the cell holder and another end to switch. अब एक तार लेके उसको दोनों कीलों के बीच में अटैच कर देना है और तार को फिर उसके बाद हमें पहले एक सिरे को स्विच से और दूसरे सिरे को जो सेल होल्डर है उसमें लगा देना है. Connect the second wire between the cell holder and the switch. Place the magnetic compass beneath the wire between the 2 nails. और मैग्नेटिक कंपास को आपको यहाँ रख देना है, दो जो कीलें ठोकी थी हमने उसके बीच में जो तार से कनेक्टेड एरिया है उसमें रख देना है. While watching the compass needle, move the switch to on position to allow electric current to flow through the wire. What do you observe? अब आपको स्विच जो है वो ऑन कर देना है. अब करंट फ्लो होने लग जाएगा. अब आपको देखना है कि क्या होता है. Now again while watching the compass needle, move the switch to off position. What do you observe this time? अब कंपास नीडल को देखते हुए स्विच को ऑफ कर देना है और इस टाइम आपने क्या ऑब्जर्व किया. Move the switch between on and off position a few more times. Carefully observe how the compass needle behaves each time. आपको बार बार ऑन ऑफ करना है और देखना है किस तरीके से कंपास की नीडल बिहेव करती है. You may have noticed that when the current flows, the compass needle gets deflected from its original direction. तो आप नोटिस करेंगे कि जब करंट फ्लो होता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो जो उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन होती है कंपास की नीडल की वो वहां से हट जाता है. When the current stops, the needle returns to its original direction. और जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो नीडल अपनी पुरानी जगह पर लौट आते हैं. As we have learnt earlier in grade 6, the compass needle is a tiny magnet which deflects when a magnet is brought near it, and this magnetic effect can act through a non-magnetic material kept in between. अच्छा, तो आपने क्लास 6 में ये भी पढ़ रखा है कि जो कंपास की नीडल होती है वो एक छोटे मैग्नेट से बनी हुई होती है. तो कोई मैग्नेट अगर इसके करीब लेके जाते हैं तो इस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से
वो एक्ट करती है. बट वाई डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द वायर. तो आपने ये देखा कि क्यों ये जो कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है बीच में एक तार लगा होने की वजह से. द डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स दैट द करंट कैरिंग वायर हैज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन द कंपास नीडल. तो मैग्नेटिक इफेक्ट इसलिए हो रहा है कि ये जो डिफ्लेक्शन इसलिए हो रहा है कि जो तार है उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट है, जिसमें जब उसमें बिजली यानी करंट फ्लो होता है तो उसमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो जाता है. When the current stops, this magnetic effect disappears and the compass needle returns to its original direction. जब कोई मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाता है जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं और जो कंपास की नीडल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौट आती है. The region around a magnet or a current carrying wire where its magnetic effect can be felt, such as the deflection of compass needle, it is said to have magnetic field. तो जो एरिया होता है मैग्नेट के आसपास का या फिर अगर किसी तार के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो जाता है जिसको महसूस किया जा सकता है कंपास के जरिए. तो इस इफेक्ट और इस एरिया को जहां तक भी मैग्नेटिक इफेक्ट फील होता है उसको कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड. When electric current flows through a conductor like a wire, it produces a magnetic field around it. This phenomenon is known as the magnetic effect of electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट जब भी एक कंडक्टर के अंदर से फ्लो होता है जैसे कि कोई तार, उसके अंदर से जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है और इसको हम कहते हैं इस फिनोमिनन को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर्स व्हेन द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग. और जब इलेक्ट्रिक फ्लो बंद हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो खत्म हो जाता है. We have learnt about magnets and electric current in earlier grades. I used to think that there was no link between the two, but now we found that electricity and magnetic fields are linked. अच्छा, अब be a scientist. You have just now made the same discovery which was made by the scientist Hans Christian Ørsted in 1820. That is the discovery that electricity and magnetism are linked. He was a professor at a university in Denmark. It is said that once while giving a demonstration, he noticed that whenever an electric circuit was closed or opened, the needle of a magnetic compass lying nearby deflected. He investigated this, and when he was certain that an electric current indeed produced a magnetic field, he published his findings. This led to other scientists repeating this experiment to check if they got the same results and further investigating the connection between electricity and magnetism. तो हमने जो अभी पढ़ा है मैग्नेट के बारे में, जो पीछे हमने एक छोटा सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये एक्सपेरिमेंट जो है इसके बारे में ये वाली जो सोच है सबसे पहले आई थी साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के दिमाग में सबसे पहले. तो वो एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे यूनिवर्सिटी में कोई बिजली के बारे में. पास ही में एक मैग्नेट पड़ा था तो उन्होंने उसमें देखा कि बार बार डिफ्लेक्शन हो रहा है. फिर जब उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो उनको ये समझ में आया कि जहां कहीं भी करंट फ्लो होता है वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है. फिर उन्होंने अपने इस आइडिया को पब्लिश किया और इसके बाद कई इसके ऊपर रिसर्चेज हुई और लोगों को पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या संबंध है. द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सच एज इन डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक बेल्स, मोटर, फैंस, लाउड स्पीकर एंड मोर. अब ये जो है कई जगह इस्तेमाल होता है मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, इलेक्ट्रिक बेल्स में, मोटर्स में, फैंस में और लाउड स्पीकर्स में. Electromagnets take around 50 centimeters long length of a flexible insulated wire, an iron nail, an electric cell and a few iron paper clips. तो एक और एक्सपेरिमेंट आ गया जिसके लिए हमें कुछ सामान चाहिए. Tightly wrap the wire around the nail in form of a coil as shown in figure 4.2. तार को इस तरीके से एक कॉइल की शेप में लपेट देना है. And secure it with an adhesive tape. और इसके ऊपर टेप लगा देना है. Connect the ends of the wire to cell. Take care to not connect the wires to cell for more than a few seconds, otherwise the cell may weaken quickly. तो आपको क्या करना है कि इसके वायर के जो एंड से उसको सेल में अटैच कर देना है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं अटैच करना है क्योंकि बैटरी इसकी खत्म हो सकती है. ब्रिंग द नेल क्लोज टू आयरन पेपर क्लिप्स एंड लिफ्ट अप. डू द क्लिप्स हैंग टू द एंड्स ऑफ नेल. अब जो है इस आयरन क्लिप को, आयरन का जो हमने यहाँ पे बीच में कील लगा रखी है, इसको पेपर क्लिप के पास लेके आना है. तो इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारी पेपर क्लिप्स इस पे चिपक गई हैं दोनों एंड्स पे. Disconnect the wire from the cell to stop the flow of electric current in the wire. Do the clips fall down? जब हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो क्या ये क्लिप्स गिरेंगी? When the electric current flows through the coil, the clips cling to it, but when the current is stopped, the clips no longer cling to it. Let us now try to investigate these observations in details. अब जैसे हम स्विच ऑफ कर देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बंद हो जाएगा यहाँ पे. अब ये मैग्नेट की तरह एक्ट नहीं करेगी ये कील, और ये जितनी भी कीलें हैं, ये जितनी भी क्लिप्स हैं, ये सारी गिर जाएंगी. अब है एक्सपेरिमेंट. टेक अराउंड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर, अ पीस ऑफ चार्ट पेपर, एन आयरन नेल, एन इलेक्ट्रिक सेल, 2 मैग्नेटिक कंपास एंड अ फ्यू आयरन स्टील पेपर क्लिप्स.
रोल अ पीस ऑफ चार्ट पेपर टू मेक अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर रफली इक्वल टू विड्थ ऑफ ए पेंसिल। चार्ट पेपर को फोल्ड करके उससे हमें एक पेंसिल के शेप का या पेंसिल की जितनी मोटाई का एक गोल बना लेना है। सिक्योर इट विथ एन एडेसिव टेप, उसको टेप से सिक्योर कर लेना है। टाइटली विंड अराउंड 50 टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर ऑन सिलेंडर टू फॉर्म अ सिलेंड्रिकल कॉइल एज शोन इन फिगर 4.3a। सिक्योर द वायर विद एन एडेसिव टेप। अब इसके ऊपर हमें वायर को लपेटना पड़ेगा कम से कम 50 टर्न, और उसके बाद उसको एडेसिव टेप से सिक्योर कर लेंगे। प्लेस द कंपास नियर द टू एंड्स ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइल। अब कंपास को जो है दो सिरे हैं वहां पे रख देंगे, एक सिरा ये और एक सिरा ये। कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द कॉइल विद द टर्मिनल्स ऑफ सेल एज शोन इन फिगर 4.3c। जैसा इसमें दिखाया गया है पिक्चर में, उस तरीके से एक बीच में सेल से कनेक्ट कर देंगे इसको। डू यू फाइंड एनी डिफ्लेक्शन इन द नीडल्स ऑफ कंपासेस। आप इसमें कोई डिफ्लेक्शन देख पाते हैं कंपास में? डिस्कनेक्ट द वायर फ्रॉम द सेल। डू द नीडल्स ऑफ कंपासेस कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। अब जब हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो क्या कंपासेस वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है? इंसर्ट एन आयरन नेल इन द पेपर सिलेंडर एंड रिपीट द स्टेप्स। इज देयर एनी डिफरेंस इन द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल? प्लेस सम आयरन पेपर क्लिप्स नियर द टू एंड्स ऑफ द नेल। आर द क्लिप्स अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ द नेल? अब क्या करना है, उसके अंदर जो हमने एक रोल बनाया था चार्ट पेपर का, उसी के अंदर हमें एक कील फंसा देनी है, जिससे कि यहाँ पे भी एक ऐसा मटेरियल हो जाएगा जो कि करंट को फ्लो करता है। तो उसके बाद हमें अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि उससे हमें कितना डिफ्लेक्शन देखने को मिला, क्या वो ज्यादा डिफ्लेक्शन था या जो नीडल थी वो अपनी ही पोजीशन पे रही। इट यू ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द सिलेंड्रिकल कॉइल इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड डिफ्लेक्ट्स द नीडल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास। ये देखा गया कि जब करंट है वो सिलेंड्रिकल कॉइल में से फ्लो होता है तो ये एक मैग्नेट की तरह ही एक्ट करता है और नीडल को डिफ्लेक्ट करता है। When an iron nail is inserted in core of the coil, then the coils become more stronger magnet and the deflection of magnetic compass needle is much more. अब जब हमने इसमें बीच के अंदर आयरन नेल लगा दिया तो फिर हम जो डिफ्लेक्शन देखेंगे वो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो मैग्नेट है ये अब ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बन चुका है। It also attracts iron clips. When the current is stopped, the cylindrical coil loses its magnetic effect. ये आयरन क्लिप को भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जैसे ही इसको हम स्विच ऑफ करेंगे वैसे ही ये सारे मैग्नेटिक इफेक्ट को खत्म कर देगा। अब इसके अंदर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं रहेगा। A current carrying coil that behaves as a magnet is called an electromagnet. तो एक ऐसा कॉइल, तारों का एक ऐसा कॉइल बना हुआ हो जिसके अंदर से बिजली प्रवाहित होती हो, विद्युत प्रवाहित होती हो, और जो मैग्नेट के जैसे एक्ट करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाला मैग्नेट। For practical applications, most electromagnets have an iron core to make them stronger. जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उसके अंदर एक आयरन कोर लगा होता है जिससे कि वो ज्यादा पावरफुल बन सके। Does electromagnet also have two poles like a bar magnet? क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी दो पोल्स होते हैं जिस तरीके से बार मैग्नेट के होते हैं? तो इसके बारे में जानेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।